students, good morning. So we are continuing our chapter number 9, working with array and strings. In the last session we have learned about what is an array. We have seen the definition of array, that an array is a variable representing a collection of homogeneous types of elements. Then we have learned there are two types of the arrays. One is a vector, it's a one-dimensional, yani 1D. Then second is a matrix that you represent the two-dimensional arrays. We are going to learn how to create an array object using the new operator and specify the size, or directly initialize the content of array. Then we have learned about the 1D array with single dimension is known as the 1D array. How you can declare it. For example, first you have to declare array object with the data types. Then you can create any object with the new operators and specify the size. Then we have learned some examples of it. We have learned this example. Now we are going to the next step. One can also specify the initial value of the data elements while declaring an array. 1D array is initializing using comma separated values of the data elements in braces. For example, int marks. Then you can directly initialize the value. You are not specifying the size, but you are directly initialize the value. For example, we are going three values: 90, 70 and 77, and those are separated with the comma. Or you can declare that int, then bracket, square bracket sign, then marks is equal to, in the curly braces the values has been given. Not that when an array is initialized while creating, it does not need to use a new operator. Its size is same as the number of values specified in the braces. The code shown, आपने देखा, हमने लास्ट टाइम जो डिक्लेरेशन देखा था, तो डिक्लेरेशन में ऐसा देखा था कि अगर आपको साइज स्पेसिफाई करनी है तो न्यू ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा. बट अगर आप वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हो उसके अंदर, डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो, तो उसमें साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत, न्यू ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी. उसके अंदर डायरेक्टली साइज लिख दो, आप उसकी जो भी नंबर है, जो भी वैल्यूज है, वो वैल्यूज उसके अंदर बता दो. यहाँ पे एक नेक्स्ट है, उसके अंदर बताया कि द डिफरेंट वे टू क्रिएट एन इनिशियलाइज एरे. Not the use of class method display used to display contents of array. Class methods are declared as static and can be referred without any object in the class. Now we are going to learn this program. Class array to public static void main string use किया, int marks1 is equal to new int 3, यानी साइज स्पेसिफाइड की है. कितनी साइज स्पेसिफाई की है? 3 की है. अब पहली बार में देखिए int marks2 is equal to new int 3, then int marks. ये डिफरेंट बता किस तरह से आप दोनों में से आप int डेटा टाइप डिक्लेयर करो, फिर वेरिएबल का नाम लिखो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, या फिर डेटा टाइप लिखो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, फिर वेरिएबल का नाम लिखो, दोनों चलेगा उसके अंदर. देन int marks4, उसके अंदर क्या है, वैल्यूज इनिशियलाइज किए, तो न्यू ऑपरेटर लिखने की जरूरत नहीं है. उसमें भी दोनों सिस्टम फॉलो कर सकते हो जो अभी मैंने बताया आपको. नाउ system डॉट आउट डॉट प्रिंट array marks1, और उसके अंदर डिस्प्ले मेथड यूज करके marks1 3 लिखा है. देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट array marks2, जिसे सभी वन बाय वन डिस्प्ले मेथड यूज करके बनाया है. अब क्या है डिस्प्ले मेथड किस तरह से यूज की, पहले वो बता देता हूं मैं आपको. तो देखिए नीचे बनाइए डिस्प्ले मेथड, जिसके अंदर int size क्या बना, int i लूप यूज की है, फोर लूप यूज की गई है. यहाँ पे int i is equal to 0, then i is less than size and i plus plus. अब int i की वैल्यू कितनी है, 0 है. int साइज की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे साइज कितनी स्पेसिफाई की गई है, 3 की गई है सभी में. आप देख सकते हो सभी में 3 है, तो 3 से जब तक कम है तब तक वो चलता रहेगा. क्या चलेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करके एरे में आई की जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यूज मतलब में दी गई है वो होगी. और /t यूज किया, इट मीन्स टैब मीन्स क्या होता है, आप सिंगल स्पेस छोड़ते हो तो दोनों के बीच में एक सिंगल स्पेस हो जाएगा, लेकिन टैब करोगे, टैब में मोर देन 1 स्पेसिस होती है. वो डिपेंडेंट होता है आपके क्या सेटिंग है उसके ऊपर, यानी 2-3 स्पेस छोड़ने के बाद आप नेक्स्ट वैल्यू उसके अंदर डिस्प्ले होगी, तो टैब होता है वो. अब कीबोर्ड से टैब की होती है, टैब की प्रेस करोगे तो आपको पता है. और अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा तो सी लैंग्वेज के अंदर ये कैरेक्टर्स के तौर पे यूज हुआ तो आपको आइडिया होगा. देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करके प्रिंट करवाया. अब क्या होगा वो देखिए, जैसे डिस्प्ले मेथड होगी जिसमें marks1 3, तो marks1 में क्या है, न्यू int 3 इतना लिखा और कुछ भी नहीं लिखा. नाउ यू कैन सी डाउन. अब इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे. अच्छा, किस तरह से सेव होगा, array2.java से सेव करेंगे, जो क्लास का नाम है उसी नाम से सेव करना है. देन वी आर गोइंग टू कंपाइल इट. टूल्स मेनू में जाके कंपाइल करवाएंगे.
कंपाइल करवाने पे हमको पता चलेगा कि भाई उसमें कोई एरर है कि नहीं। अगर एरर होगी तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर कोई एरर नहीं है उसके अंदर तो आपको फिर उसकी बाइट कोड फाइल यानी कि डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। अब इसको हम रन करवाएंगे। रन करवाने के लिए फिर से टूल्स में जाके गो के ऊपर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही रन होगा आउटपुट मिलेगा जिसमें मार्क्स वन के अंदर क्या है, INT3 लिखा है, बट उसमें कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई वैल्यू हमने दी नहीं है। तो क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, कोई भी INT डेटा टाइप आप लिया है तो 0। तो देखिए मार्क्स वन में 0 0 0 ऐसा प्रिंट हो गया। टैब की यूज की है, टैब यूज किया इसलिए बीच में स्पेस ज्यादा दिख रही है उसके अंदर। देन मार्क्स टू में भी न्यू INT3 लिखा है, उसमें भी कोई वैल्यू नहीं दी है तो 0 आ गया। मार्क्स 2 मार्क्स 3 सभी में ये सिस्टम है कि कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया तो 0 0 आ गया। मार्क्स 4 के अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है 50 60 70 तो डायरेक्ट वो प्रिंट हो गए। देन 70 80 90 तो वो प्रिंट हो गए। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है आपके लिए कि भाई अगर हमने वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं किए और अगर मुझे वैल्यूज उसके अंदर देनी है तो क्या करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग थोड़ा और कोडिंग बढ़ेगा उसके अंदर, जिसके अंदर स्कैनर यूज करना पड़ेगा। स्कैनर क्या करेगा, वो यूजर के पास से इनपुट लेगा, यानी अगर मैं उसमें वैल्यूज है तो मुझे वो स्पेस देगा जिसमें मैं वैल्यू एंटर कर सकूं, यानी 3 वैल्यू में खुद से अपने से एंटर कर सकूं। इसीलिए तो न्यू ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। होता है कि हर बार मुझे नई एंट्रीज करनी है तो मैं नई एंट्रीज उसके अंदर कर सकूं, बराबर। तो इसमें एक स्टेप आगे बढ़ेगा और आप उसके अंदर यहाँ पे तो सिंपली सिर्फ बताया कि किस तरह से वैल्यूज आउटपुट में आपकी आएगी। तो इस तरह से डिफरेंट वेज टू क्रिएट एंड इनिशियलाइज द एरे ऑब्जेक्ट। In Java, we cannot specify both the size of dimension and initial values of the array elements simultaneously while declaring an array. Figure 9.4 shows the code to illustrate the statement. If we declare an array variable without initialization, only a variable is created to hold the reference as shown figure 9.1. It does not create an array object. No memory is allocated for array elements. If we try to access element, इट विल बी रिजल्ट एंड एरर। अगर आप कोई भी उसमें नहीं कर रहे हो और अगर साइज में अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो वहां पे एरर आएगी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए इस प्रोग्राम में क्या एरर है मैं ये बता दूं आपको। सबसे पहले क्लास एरर थी या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देखिए INT मार्क्स 4 और उसके अंदर वैल्यू स्पेसिफाई की है 3। अगर आपको वैल्यू स्पेसिफाई करनी है तो न्यू ऑपरेटर यूज करके उसमें ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। या फिर आप इसमें इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे इनिशियलाइज किया देखिए 50 60 70, यानी दोनों साथ में नहीं होगा, ये इलीगल वे है, इसलिए यहाँ पे एक एरर आ जाएगी। देन दूसरे में देखिए INT 5 लिखा है उसके अंदर, 5 और मार्क्स 5। तो इस तरह से अब यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई की है 5 की और उसके अंदर भी 3 ही वैल्यू दी है। तो इस तरह से ये दोनों इलीगल वर्क हो गया उसके अंदर। एक तो आपने न्यू ऑपरेटर नहीं यूज किया, वैल्यू इनिशियलाइज वैल्यू स्पेसिफाई किए तो उसको इनिशियलाइज नहीं करना है, और अगर आप वैल्यू दे भी रहे हो तो भी उसकी सेम साइज की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। देखिए आप यहाँ पे देखिए इलीगल वे स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऐसा एरर आ जाएगा उसके अंदर। और इस तरह से पूरे जितना भी सब एरर आ जाएगा, यानी ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आपको दोनों में से कोई भी एक ही वर्क एक टाइम पे करवाना है। Every element of an array is an individual variable that can be referred by using index. Like variables to change the value of an element, we can use assignment statement referencing a variable element on left side. For example, marks 3 is equal to 56. Let us write the program to compute average of 10. Most IMP ये हर बार प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आता है, ध्यान में रखिए किस तरह से पूरा प्रोग्राम है। सबसे पहले क्लास एरे एवरेज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग डबल और नंबर्स एरे करके उसके अंदर वैल्यूज दे दी है। कितनी वैल्यूज दी है, तो भाई 10.5 ऐसी कुछ टोटल वैल्यूज दी है उसके अंदर, आप 10 वैल्यूज दी है उसके अंदर। नाउ बाइट CTR डबल सम इज इक्वल टू 0 और एवरेज। अब सिस्टम डॉट प्रिंट एलन यूज करके लिस्ट ऑफ नंबर इज ऐसा मैसेज प्रिंट होगा, आप बाजू में आउटपुट में देख सकते हो। देन फोर लूप यूज करके CTR की वैल्यू 0 है, CTR लेस देन 10, CTR प्लस इंक्रीमेंट मिलेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके नंबर CTR जो काउंटिंग होगा उसकी वैल्यूज प्रिंट होगा। तो 1 by 1 क्या होगा, प्रिंट होता जाएगा। पहली बार में 10.5 प्रिंट जो पहली वैल्यू है वो प्रिंट हो गए। जितनी भी 10 वैल्यूज है वो 1 by 1 उसके अंदर प्रिंट होती जाएगी। प्रिंट होने के साथ साथ एक और काम हो रहा है, यहाँ पे सम हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर स्ट्रिंग। अभी सम की वैल्यू कितनी है, 0, और CTR वैल्यूज क्या हो गई 10.5, तो 0 प्लस 10.5। अब सम की वैल्यू कितनी हो गई 10.5।
10.5 है। अब दूसरी वैल्यू आएगी, जब लूप घूमती रहेगी, क्योंकि 10 जब तक 10 नंबर्स तक कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक लूप घूमती रहेगी। ये आप लूप वाला प्रोग्राम मैंने आपको समझाया है। तो दूसरी वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू है 20.6। अब क्या होगा, सम की वैल्यू कितनी है, 10.5 है, तो 10.5 प्लस 20.6 यानी उसका टोटल जो होगा वो सम में चला है। ऐसे 1 बाय 1 जितनी भी वैल्यूज एक दूसरे के अंदर ऐड होते 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 उसके अंदर चली जाएगी। और कुछ अबाउट 2159 ऐसी कुछ उसकी वैल्यू टोटल हो रही है। अब एवरेज करेंगे, एवरेज कैसे फाइंड होगा, तो सम डिवाइडेड बाय 10, टोटल उसका क्या हो रहा है 215.9 ऐसा कुछ उसका, यानी 215.9 ऐसा कुछ उसका टोटल हो रहा है। अब यहाँ पे आप एक और लाइन ऐड कर, मैं जब यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाता तो एक लाइन ऐड करवाता हूँ, इसके अंदर सम की वैल्यू भी हम प्रिंट करवा रहे हैं, यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन द टोटल ऑफ अबव नंबर इज, और फिर वैल्यू प्रिंट करवाएंगे सम की, बराबर। जो टोटल है वो भी यहाँ पे हमारे सामने मैसेज के तौर पे प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे एवरेज का भी करवाया तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एवरेज ऑफ अबव नंबर इज, और एवरेज की जो वैल्यू है वो 215.9, तो उसमें डिवाइडेड बाय 10 कर 21.59, वो उसकी एवरेज वैल्यू इसमें हो जाएगी। तो इस तरह से प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम यहाँ पे बनेगा। Here we need to use the same operation, add numbers to sum repeatedly for different elements of same type. Use an array helps in declaring 10 variables at a time and using loop to perform same operation on different variable elements. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे सीखनी है हमें, we can perform various other operation on array. For example, compare two arrays, copy all the elements of an array, other search for specified elements in array, sort elements of array, and so on. For all such operation, we may write procedures as we denote finding average of the element. Instead of writing search code ourselves, we can use various static method provided by Java using java.utl. ये पैकेज है उसका, उस यूज कर सकते हो। इन जावा एरे इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एरे क्लास। दिस enables यूज टू मेक ऑफ मैथड एरे क्लास विथ एन एरे टाइप ऑफ दिस कोड लिस्टिंग एंड आउट ऑफ फिगर। हियर दो मेथड यहाँ पे बताएगी, एक सॉर्ट मेथड एंड फिल मेथड, जो एक पैकेज है हमारा java.utl करके, उसके अंदर यूज कर सकते हो। सॉर्ट मेथड क्या है, जो भी आप वैल्यूज दोगे, जो एंटायर होगा पार्ट होगा एरे, जितनी भी वैल्यूज है उसको सॉर्टिंग करके दे देगा, यानी इंडेक्सिंग उसमें मीन्स के उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करके दे देगा। आप जिस तरह से उसमें स्टार्ट क्लास जिस तरह से उसमें वैल्यूज देगा वैसे वो उसमें होगा। फॉर एग्जाम्पल java.utl.array.sort लिस्ट 1 5, तो जो लिस्ट होगी उसमें से 1 से लेके 5 तक जो है वो पूरा उसमें सॉर्टिंग करके दे देगा। फिर दूसरी एक मेथड भी है फिल करके, जिसके अंदर आपको कोई वैल्यू स्पेसिफाइड फिल करवानी है उसके अंदर, तो वैल्यूज फिल करवा सकते हो। चलिए एक प्रोग्राम है उसका, वो मैं दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी है 6.4, 8.7, 6.48, 7.8, 9.9.5, इधर उधर है सब कुछ। अब इसके अंदर क्या है, डिस्प्ले लिस्ट करवाई, तो डिस्प्ले लिस्ट में क्या होगा, जो वैल्यूज है वो पहले लिस्ट हो रही है। फिर सॉर्टिंग करवाया, सॉर्टिंग के अंदर क्या करा, सॉर्टिंग के अंदर क्या कमांड यूज किया, लिस्ट 39। तो लिस्ट 39 में क्या होगा कि पहली 3 जो है वो तो जैसे सेम रहेगी, यानी 6.4, 8.0, 7. क्योंकि 0, 1, 2 हो गया वो तो हो गया। जैसे ही थर्ड हो रहा है 9.8 से जहां पे हो रहा है, और वहां से लेके जो पूरा है टोटल, उसमें जो है उसमें जहां पे भाई फॉर एग्जांपल आपने कहां तक ली है, तो भाई जहां तक ली होगी यहाँ पे 8 तक, तो यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8.5 तक। तो इतनी जितनी भी वैल्यू है, यानी कितनी वैल्यू हुई 9.8, 9.5, 6.0, 7.0, 8.0 एंड 8.5, उसको सॉर्टिंग करके दे देगा। अब जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करके दे दिया, आप देख सकते हो उसके अंदर पूरा सॉर्टिंग करना। नीचे देखिए सॉर्ट होल एरेस, पूरा सॉर्टिंग किया है, डिस्प्ले लिस्ट जावा जो सॉर्ट करके लिस्ट, पूरे लिस्ट को सॉर्ट किया तो पूरा आ जाएगा। देखिए जिसमें सबसे कम वैल्यू कितनी है 5.9, उसके बाद 6.4, 7.0, 7, इस तरह पूरा सॉर्टिंग करके दे देगा। फिर फिल वैल्यू, फिल में क्या किया देखिए यहाँ पे, फिल में लिस्ट 7 लिस्ट यूज किया, उसके अंदर 7 नंबर्स उन्होंने फिल करवाया। वो क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा। आप देख सकते हो जो नंबर्स थे उसको ओवरराइट हो गए, सभी में 7, 7, 7, 7, 7 हो गए। या फिर आप उसको इस तरह से फिल करवा सकते हो, लिस्ट 2, 6.5, 6.5 यहाँ पे आपने प्रिंट करा, तो वहां पे 6 और 5 जहाँ पे, वहां पे जो 6 नंबर लेके 5 तक वो पूरा प्रिंट करके दे देगा आपको। तो इस तरह से भी पूरा फिलिंग करके दे सकते हो। लूप घुमानी है बस आपको, लूप जैसे घुमाते जाओगे वो आपको सामने वो जो है आउटपुट वो आपके सामने आता जाएगा। तो इस तरह से सॉर्टिंग और फिल मेथड भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर।
ऐसे कोई भी एरेस आपको क्रिएट करने तो आप ऐसे सर्च एरे क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर प्रोग्राम दे सकते हो। यहाँ पे एलिमेंट्स फाउंड एट पोजीशन 7 कोई भी वैल्यूज आपको फाइंड करवानी है कि भाई ये वैल्यू कहाँ कौन से नंबर पे है, 8 नंबर है तो 8 कहाँ पे है, कौन से नंबर पे है, तो वो आप फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फाउंड एट पोजीशन 7 पे सर्च का ऑप्शन है, तो सर्च ऑप्शन भी आप यहाँ पे एरे के अंदर यूज करके काम कर सकते हो। तो इस तरह से पूरा 1D एरे वर्क करेगा हमारा। आज के दिन के लिए 1 डायमेंशन एरेस ये सब उसके प्रोग्राम्स हमने देखे किस तरह से वर्क करना है। फिर हमने उसके अंदर कुछ मेथड्स देखी, किस तरह से उसके अंदर इंडेक्सिंग करना है, वो सब कुछ डिटेल्स देखी, सॉर्टिंग करना देखा, फील्ड एक्स्ट्रा वैल्यूज फिल करवाना देखा। आज के दिन के लिए बस यहीं तक। आई एम हिमांशु चौहान। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे। ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी। हरि ओम।